Moving forward to the last session of today's day, overview of FCRA and taxation of trust, a very burning and hot issue to be discussed. And to discuss the same, we are having amongst us Sanjay Agrawal ji. I welcome you, sir. Sanjay Agrawal ji is a graduate in commerce from Delhi University in 1983 with honors. He is a member of ICAI since 1986 and has been in practice since then. He has visited over 1,000 NGOs across the nation and conducting financial review and system assessment on behalf of grant making agencies. He advises grant makers on grant management, monitoring system, and NGOs on accounting and regulatory matters. He has facilitated numerous workshops for NGOs, grant makers, and NGO auditors in South Asia. He writes regularly on accounting and regulatory issues for NGOs and NGO auditors. He has various publications, including Accountable Handbook on FCRA, another on NGO accounting and regulation, Daan and Other Giving Traditions in India. A new edition on the FCRA handbook is expected in August 21. He also co-authored the India chapter in Philanthropy and Law in South Asia, published by APPC Philippines. I welcome you, sir. And with these words, I over the session to you. Thank you, sir. I would like to highlight the very specific feature regarding the CA Sanjay Agrawal, sir, that he does not accept the fees or fee-based assignment for implementing NGOs. Sir, kudos for this kind of activities, that you don't accept the fee or fee-based assignment for implementing NGOs. Over to you, sir. Thank you, sir. So, thank you so much, sir, for having me here. It's a wonderful opportunity, and I'm indeed, humbled by this, August gathering. Anandji, Kiritji, and Kirtiji, and the previous speaker. I was fortunate enough to listen to part of the presentation. Really, very much in line with what we expect from Indore branch. Without taking much time, I will go on to this topic of FCRA. This when we spoke about this, I mentioned to Pankaj ji that it will be difficult for us to compress both FCRA and income tax in one session. So therefore I propose to do only FCRA, and that too a part of FCRA, because FCRA is a huge topic, very complex now. We will not be able to do justice even to that. As I was finishing the manuscript this morning, I realized that how much it has changed over the years, and how little we really know. So I will just share some quick concepts, basic concepts with you, and then I will take up issues which are more of relevance to us as auditors and practicing chartered accountants. So to start with the background, see, the essential background of FCRA is that it is designed around a concern that foreign sources or foreign organizations would be influencing Indian politics or Indian society, and how to prevent that. So in 1976, the government had brought this in. In 1984, the law was extended in the sense that it was made mandatory for NGOs to receive, to obtain registration or prior permission before accepting funds. And in 2010, this law underwent a major overhaul. And when that happened, sir, our learned finance minister, Minister of Home Affairs at that time, Mr. P.J. Tamram, he had made this very interesting observation in the parliament. Because till then we did not really know what FCRA was all about. We were quite in the dark. And he made this observation that it is meant actually not to just regulate politics, but also to ensure that foreign contribution does not dominate social and political discourse in India.
Now, this is the key to FCRA, and that's why many of us who practice, we often find it perplexing. Why the income tax why the FCRA department takes so much interest in the work which NGOs are doing. But this is the key. So later on, this was affirmed by the Home Secretary in the FCRA annual report. Again, he said that so long as you're receiving money for welfare activities, it is fine. But the moment you get into advocacy, in policy matters, into governance, that is when the Ministry of Home Affairs becomes interested. So let me now quickly switch to some key concepts. And one of them, of course, the bedrock of FCRA is foreign source. So what is foreign source? Foreign source is any source essentially which is under control of foreigners, including, people who are persons of Indian origin, in the sense that they were at one point of time Indians, but now they have taken foreign citizenship. I will go more deeply into this a little later. And the second item, there's the second element of foreign contribution is specified items, which are three types of items, including article, currencies, or securities. Now, even Bitcoin, which is the latest fad on the block, is part of, is covered by this definition of specified items, as are electoral bonds, for example, which are a kind of promissory note issued by by a specified bank. Then the third element, which is critical, is that the money should be in the form of a non-commercial transaction, or it should be a donative transaction. So that is the reason why you and I can accept fees from overseas clients or for foreigners without having to get FCI registration. And when these three elements are taken together, then what remains in the center, that is foreign contribution. So this is a very, very important thing for us to remember. Many NGOs, many practitioners sometimes get confused. So for example, if you are getting dollars from a person, that does not necessarily mean that is foreign contribution, because it might be given to you by an Indian citizen. And on the other hand, if a Nepalese citizen, for example, was to give you Indian rupees, or a Bhutanese citizen was to give you Indian rupees, or a tourist in India was to give you Indian rupees, then also it will remain foreign contribution. Let's briefly look at foreign source in more detail. So foreign source, broadly, there are three elements. First is individuals. Second is any agencies, donor agencies, INGOs, international organizations, etc. And the third is businesses. Now, as far as individuals are concerned, individuals are of three categories. One is, pure foreign citizens, in the sense that they are not Indians at all. And the second category is persons of Indian origin, meaning that they were Indian citizen at some point of time, but now have taken foreign citizenship. And the third category, which is very confusing sometimes, is dual citizen. So essentially, India does not really recognize dual citizenship, unlike US and Canada, or, US and UK. What we have is, overseas citizen of India, which is a kind of a very, very mild form of, citizenship rights, which has been further restricted by a recent notification. But the main point is that a dual citizen is actually, in any case, a foreign citizen. So the way FCR is structured, a dual citizen remains a foreign source, irrespective of their, overseas citizen of India status. Sorry to interrupt you. जी sir. But sir, mix रहेगा तो it would be easy to. Mix meaning? Mix means sir Hindi English mix. अच्छा. So, okay. Because in central India, sir, generally जी. members are more comfortable with Hindi, sir. जी, मैं तो दोनों बोल सकता हूँ, आप जैसा कहें. I know that, sir. That's why I'm requesting you, sir. CTC का आपका जो था, that was completely in Hindi, sir. और हम उसी दिन कायल हो गए थे, sir, आपके. तो मैं हिंदी में बोलूं? हिंदी इंग्लिश बोथ, sir. हाँ, मतलब प्रेजेंटेशन तो इंग्लिश में है, तो मैं हिंदी में बोल मैं एक्चुअली स्विच करता हूँ ना, तो भूल जाता हूँ कि क्या बोल चुका हूँ मैं. तो कभी एक ही लैंग्वेज बोलता रहता हूँ, तो हिंदी में ही बोलता हूँ फिर. सर ठीक रहेगा? सर बिल्कुल ठीक है.
तो मैं जैसे कह रहा था कि इंडिविजुअल्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो एक सबसे पहले उसमें फॉरेन सिटीजन्स हैं। तो फॉरेन सिटीजन तो सभी को मालूम है कि ये विदेशी हैं और इनको हम लोग फॉरेन सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, वो मैटर नहीं करता। सेकंड है कैटेगरी जो पीआईओ की। तो पीआईओ जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये ध्यान रखना है हमें कि जो एनआरआई है, एनआरआई टर्म बहुत लूजली लोग कॉमनली यूज करते हैं। एनआरआई जो है वो नॉट नेसेसरली, वो जरूरी नहीं है कि वो फॉरेन सोर्स हो। अगर एनआरआई पीआईओ बन चुका है, इन द सेंस उन्होंने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली है, तभी वो फॉरेन सिटीजन बनते हैं, फॉरेन सोर्स बनते हैं। और थर्ड कैटेगरी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो डुअल सिटीजनशिप जिसको कभी कभी कहते हैं। हमारे यहाँ कोई डुअल सिटीजनशिप नाम की चीज़ है नहीं, जैसे कि यूके और यूएस में है, या यूएस और कनाडा में है। हम लोग एक कुछ स्कीम की तरह से उनको थोड़े थोड़े बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, और लेकिन उसमें उनका इंडियन सोर्स फिर भी नहीं बनते, क्योंकि उनके पास फॉरेन सिटीजनशिप तो है ही। दूसरी कैटेगरी हमारी जो है वो एजेंसीज की है, डोनर एजेंसीज, आईएनजीओज, इंटरनेशनल एड एजेंसीज। और इसमें जैसा इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उसके साथ उसमें एक एक्सेप्शन है, बहुत महत्वपूर्ण एक्सेप्शन है, वो है कि यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, नोटिफाइड एजेंसीज, करीब करीब 118 या 120 ऐसी एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग ग्लोबल फंड फॉर एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। मिनिस्ट्री ऐड करती रहती है इसमें, और ये सारी की सारी जो है ये फॉरेन सोर्स नहीं कहलाती, इनको एक्सेप्शन दिया हुआ है, एग्जेम्पशन दिया हुआ है। सेकेंड कैटेगरी जो है वो फॉरेन एनजीओज की है, जैसे एग्जाम्पल पे आप ले लीजिए ऑक्सफैम है, ऑक्सफैम यूके है, ऑक्सफैम यूएस है, या फोर्ड फाउंडेशन है। ये सारी की सारी फॉरेन एनजीओज हैं और ये फॉरेन सोर्स रहती हैं। और थर्ड कैटेगरी आ गई गवर्नमेंट ऑफ बायलेटरल्स की, जैसे यूएसएड हो गया या डीएफआईडी हो गया। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी फॉरेन सोर्स में आते हैं। यहाँ तक मामला थोड़ा क्लियर है। बिजनेस पे आके थोड़ा सा उलझ जाता है। तो बिजनेस में क्या है कि सबसे पहली कैटेगरी है जो फॉर्म्ड अब्रॉड। कोई भी कंपनी, उसमें चाहे 100% शेयर्स इंडियंस के पास हो, उदाहरण के तौर पे वेदांता है, लंदन में रजिस्टर्ड है, अनिल अग्रवाल जी के पास उसका कंट्रोल है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो फॉर्म्ड अब्रॉड है, रजिस्टर्ड बाहर है, इसलिए वो फॉरेन सोर्स होगी। 100% शेयर्स भी अगर इंडियंस के पास होंगे तब भी वो फॉरेन सोर्स होगी। सेकेंड कैटेगरी है सब्सिडी ऑफ फॉरेन कंपनी। ये बहुत ही उलझी हुई कैटेगरी है, इस पे बहुत पॉलिटिक्स और कोर्ट लिटिगेशन हुआ है, कंफ्यूजन हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। बट यहाँ पे मेन बात हमें ये पकड़नी है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी की सब्सिडी है तो वो आज की तारीख में भी वो आपका फॉरेन सोर्स कहलाती है, वो फॉरेन सोर्स रहती है लॉ में। और थर्ड कैटेगरी है फॉरेन एमएनसी की। तो एमएनसी को लॉ में दो तरह से डिफाइन किया गया है। एक है जो कि फॉरेन एमएनसी इन द सेंस कि उसका कंट्रोल या हेड ऑफिस या उसका ओरिजिन जो है वो बाहर का है, और दूसरा हो गया जैसे मान लीजिए टाटा है या रिलायंस वाले हैं, ये अपना इंडियंस हैं, इन्होंने कोई इनकी कंपनी अगर बाहर काम करने लगती है, कंट्रोल यहीं से है, तो वो फॉरेन एमएनसी नहीं कहलाती। फिर भी ये ध्यान रखने की बात है कि अगर मान लीजिए टाटा ने एक कंपनी बाहर रजिस्टर करी या बिरला जी ने एक कंपनी बाहर रजिस्टर करी, तो फिर वो कंपनी फॉर्म्ड अब्रॉड की कैटेगरी में आके फॉरेन सोर्स बन जाएगी। तो मैंने कहा था सब्सिडी का बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये जब हम फॉरेन सोर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉरेन है कि इंडियन है कंपनी सब्सिडी, तो हम ये चार्ट हम लोगों ने एक डिज़ाइन किया था। बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी का एक प्रेजेंटेशन हो रहा था, उसमें फॉर्चुनेटली मैंने फ्लाइट पे डिज़ाइन किया था और मुझे लगा काफ़ी अच्छा बन गया है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई भी कंपनी बाहर बनी है तो हमें ये समझना है कि ये फॉरेन सोर्स है कि नहीं। तो इसके लिए ये हम लोग इस तरह से टेस्ट यूज करते हैं कि अगर वो कंपनी बाहर बनी है और उसका जवाब यस है तो फिर वो ऑटोमेटिकली फॉरेन सोर्स हो जाएगी, आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी इंडिया में बनी है, जैसे इंडियन कंपनी है, सब्सिडी है फॉरेन कंपनी की, तो फिर भी वो ऑटोमेटिकली फॉरेन सोर्स बन जाएगी। अगर किसी वजह से वो सब्सिडी नहीं है पर पार्ट ऑफ फॉरेन एमएनसी है, तो भी फिर यस होने से वो फॉरेन सोर्स बन जाएगी। और यहाँ तक भी सरवाइव करके आगे अगर ये प्रश्न आता है कि भाई इसका ये ना सब्सिडी है, ना ये फॉरेन एमएनसी है, ना ये इंडिया के बाहर बनी है,
तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई 50% ज़्यादा शेयर्स फॉरेनर्स के पास हैं कि नहीं। तो उदाहरण के तौर पे ICICI है या HDFC है, इन बैंक्स के क्वाइट ऑफन ये देखा गया इनके 60-70% शेयर्स जो है फॉरेनर्स के पास हैं। तो ऐसे में हमें यहाँ ये क्वेश्चन देखना पड़ता है कि क्या ये जो 50% ज़्यादा शेयर्स हैं इसका जो ये FDI नॉर्म से ज़्यादा है, अगर FDI नॉर्म से ज़्यादा है तब ये फॉरेन सोर्स बनेगी, अगर ये FDI नॉर्म्स के अंतर ही हैं तब फिर ये फॉरेन सोर्स नहीं बनेगी। तो यहाँ ध्यान रखने की ये बात है कि जैसे मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल लेते हैं, सुजुकी जो है उसका 67% शेयर्स सुजुकी कॉर्पोरेशन जापान के पास है, तो इंडियन कंपनी है फिर भी वो फॉरेन सोर्स कहलाएगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत क्रिटिकल इशू है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिबेट भी है, बहुत कंफ्यूजन भी है और इसमें बहुत रिस्क भी है। जैसे आपको मालूम होगा एक पहले एक बहुत फेमस केस हुआ था जिसमें कि वेदांता ग्रुप की कुछ कंपनीज ने बीजेपी और कांग्रेस को डोनेशंस दिए थे। वो फिर हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसका एडवर्स ऑर्डर पास किया। बाद में 2016 में 2018 में जेटली जी के समय में उसमें FCRA में अमेंडमेंट लाया गया, लेकिन वो जो अमेंडमेंट था उस अमेंडमेंट के बाद ये पोजीशन बनी है। वो कंपनी अभी भी फॉरेन सोर्स रहती है, क्योंकि ICICI HDFC जैसी कंपनीज जो हैं फॉरेन सोर्स के एम्बिट से बाहर हो गई, बट जो ये पुरानी जो कंपनीज हैं, जो सब्सिडरीज हैं फॉरेन कंपनीज की, वो अभी भी फॉरेन सोर्स की कैटेगरी में रहती हैं। तो हमारी नई बुक में इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट एक्सप्लेन किया है और उसमें आप इसको क्लियर देख पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं अब FCI रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल में के ऊपर आता हूँ कि जैसे NGOs हैं, ये NGOs किसी भी तरह से पैसा नहीं ले सकती हैं बिना FCI रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए। और अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें एक और चीज़ कंपलसरी हो गई है, वो है आधार नंबर। हर एक बोर्ड मेंबर का आधार नंबर प्रोवाइड करना होता है, और अगर उनमें से कोई PI हो, देखिए जनरली FCRA डिपार्टमेंट जो है फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करता। किसी भी NGO के बोर्ड पे अगर कोई फॉरेन सिटीजन है तो उसका FCRA रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन रिजेक्ट हो जाती है। पर यदि वो PIO हैं तो उनको जनरल एक्सेप्शन दिया हुआ है, जनरल परमिशन दिया हुआ है। उनके केस में PIO जो है वो वहाँ पे OCI नंबर या उनका पासपोर्ट नंबर दिया जा सकता है। इसमें हालांकि एक ग्लिच है कि अभी भी जो साइट है वो आधार नंबर फिर भी मांगती है बोर्ड मेंबर्स का, तो ये अभी शायद NIC इसके ऊपर काम करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। साथ में दर्पण ID जो है NGO का मैंडेटरी हो गया। बीच में NGO का मैंडेटरी किया था, उस वक्त एक फाउंडेशन जो थी वो हाई कोर्ट में चली गई थी, उसकी वजह से इसको ऑप्शनल कर दिया गया था। अब ये दोबारा कंपलसरी हो गया। तो दर्पण ID के लिए NGOdarpan.gov.in ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके दर्पण ID लेना होता है। और किसी भी फॉर्म, कोई भी आप FCI साइट का फॉर्म भर रहे हैं आज की तारीख में, तो आपके लिए दर्पण ID आपको देना ज़रूरी है। और दर्पण ID देने के बाद उसकी प्रोफाइल जो है उसमें जितना पैसा आ रहा है, कौन आपके बोर्ड मेंबर्स एक्सेट्रा है, वो सारा आपको अपडेट रखना पड़ता है। अब प्रायर परमिशन, तो प्रायर परमिशन क्या है? प्रायर परमिशन कंसेप्ट ये है कि 3 साल से पहले FCI डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देता है, और उसको अगर किसी के पास 3 साल नहीं हुए हैं या वो एलिजिबल नहीं है किसी वजह से, तो उनको केस बाय केस उनको परमिशन लेनी पड़ती है। और ये बड़ा ही विचित्र प्रोविजन है, क्योंकि इसमें 18 महीने तक 20 महीने तक इसके रजिस्ट्रेशन प्रायर परमिशन लग जाते हैं, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट जो है वो NGO का भी वेरिफिकेशन करता है और जो फॉरेन सोर्स है उसका भी वेरिफिकेशन करता है। तो उसके लिए कमिटमेंट लेटर डोनर से होना होता है, और ये भी ध्यान रखना होता है कि जो डोनर और ये NGO इसके बहुत ज़्यादा संबंध ना हो। तो इसके लिए फॉर्म FC3 भी जो है वो भरना है। और साथ में अभी एक नया प्रोविजन आया है कि अगर ये परमिशन जो है ये 1 करोड़ से ज़्यादा है, एक कुछ दिनों से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था डिपार्टमेंट ने। पहले तो 10-12 करोड़ की दे देते थे, अब क्या है कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको इंस्टॉलमेंट प्लान कर देते हैं। तो उसमें यह है कि आप इतना अमाउंट आप यूज़ हो जाएगा तब हम आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने की परमिशन देंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 1 करोड़ का अप्रूव किया, तो सेकंड जब 75 लाख यूज़ कर लेंगे तो दोबारा उनको इन्फॉर्म करिए, तो दे विल रिव्यू और उसके बाद वो अप्रूव करेंगे।
साथ में एक नया रिक्वायरमेंट अभी आ गया जिसकी वजह से सारी प्रोसेस डिले हो गई है, वो ये कि SBI NDMB में जो अकाउंट खुलने हैं, दिल्ली का जो गेटवे अकाउंट की तरह बना दिया है, उसका अकाउंट नंबर हर एक एप्लीकेशन मेंशन करना जरूरी है। जो पुरानी एप्लीकेशन, जो पेंडिंग एप्लीकेशन है, उनमें भी ये नंबर प्रोवाइड करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी दर्पण आईडी तो कंपलसरी हो ही गया है। इसके साथ ये रिक्वायरमेंट है कि 3 साल से कम उसका होना चाहिए, 3 साल की ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसमें एक पहले 10 लाख का रिक्वायरमेंट था, अभी इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि 15 लाख कम से कम उन्हें स्पेंडिंग होनी चाहिए इनकी 3 साल में। और वो 15 लाख भी ऐसा कि वो प्रोग्राम एक्टिविटीज पे खर्च होना हो। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और प्रोग्राम एक्सपेंसेस दोनों का डिस्टिंक्शन है। तो प्रोग्राम एक्टिविटीज पे 3 साल आपने 3 साल में कम से कम टोटल 15 लाख रुपए खर्च किया हो, तब आपका एलिजिबल बनता है। और एफिडेविट तो अभी सभी एप्लीकेशंस के लिए मांग रहे हैं कि बोर्ड मेंबर से, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसमें भी आपको SBI NDMB का अकाउंट नंबर मेंशन करना होता है। अब लास्टली ये है कि 2011 में जब ये लॉ पास किया था, तब इन्होंने इसमें एक प्रोविजन डाल दिया था कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन जो है हर 5 साल में रिन्यू कराना होगा। तो उस वक्त फर्स्ट जो राउंड ऑफ रिन्यूअल हुआ था 2016 में, उसको सबको मोर लेस ऑटोमेटिकली रिन्यूअल दे दिया था। अभी प्रोसेस चेंज कर दिया है। अभी एक तो ये कि केवल 6 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका एक्सपायर मान लीजिए 31 अक्टूबर को हो रहा है, तो 1 मई के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, इसमें भी SBI FCRA अकाउंट मेंशन करना है। और थोड़ा सा इन्होंने अभी जो, क्योंकि लास्ट ईयर जब आपका ये नया कानून आया था सितंबर 20 में, इसको मॉडिफाई किया था, उसके बाद इन्होंने एक्सटेंशन भी दे दिया है। तो जिन लोगों का 29 सितंबर 20 से लेकर 30 सितंबर 21 तक जिनके FCRA एक्सपायर हो रहे हैं, उनकी सबकी वैलिडिटी 30 सितंबर 21 तक एक्सटेंड कर दी गई है। पर उनको तुरंत अप्लाई करना चाहिए कि कम से कम आपको ये समझ लीजिए 5-6 महीने रिन्यूअल प्रोसेस करने में लगते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा लगेंगे। उसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को बताएं कि वो ये इन्फॉर्मेशन तुरंत इसको तैयार करके रखें, और जैसे ही ये अप्लाई कर सकते हैं अर्लीस्ट पॉसिबल अप्लाई कर दें। बिकॉज अभी FCI डिपार्टमेंट क्या ये भी कर रहा है कि सभी NGOs को, उनके बोर्ड मेंबर्स को फ़ोन कर करके उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, कोई डमी तो नहीं है, और उनको संस्था के बारे में पूरी जानकारी है कि नहीं, एफिडेविट जो है उन्होंने ही साइन किया है कि नहीं, ये सारी बातें, उनके फैमिली मेंबर्स के डिटेल मांग रहे हैं, उनका कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पता कर रहे हैं। तो प्रोसेस इस बार ज़्यादा स्टिफ होने वाला है, जैसा कि रिन्यूअल, जैसा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो प्रोसेस होता है लगभग वही रिन्यूअल के टाइम में कर रहे हैं। तो आप सभी को ये ज़रूरी है कि आपके NGO क्लाइंट्स जो हैं वो इस बात से पूरा वाकिफ़ हों और ठीक से इसको टाइम से अप्लाई कर पाएँ। अगर किसी वजह से डिलेड एप्लीकेशन होती है तो ड्यू डेट के 1 साल बाद तक भी लेट फी में फाइल कर सकते हैं, पर इन एनी केस FCI रजिस्ट्रेशन जो है वो जिस दिन ड्यू था उस दिन एक्सपायर हो जाएगा, और उसके बाद ना आप रिसीव कर सकते हैं ना आप ऐसा यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और नया प्रोविजन है, वो ये कि जैसे ही आपका FCI लैप्स करता है, अगर आप अप्लाई नहीं करते तो आपका जितना भी FC है और FCRA एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले जाते हैं, और जब तक वो रिन्यू या दोबारा नहीं होता या दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तब तक वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। ये बहुत ही मेजर चेंज है लॉ में, और इसकी जानकारी बहुत से NGOs को नहीं है, वो हमेशा इसको थोड़ा कैजुअली लेते हैं, डिले हो जाता है, फिर परेशानी होती है। अब अगर आपने टाइम से अप्लाई भी कर दिया लेकिन आपका रिन्यूअल डिले हो गया, टाइम का मतलब मान लीजिए कि आपने सितंबर में अप्लाई किया या अगस्त में अप्लाई किया, तो उसके डिपार्टमेंट ने आपका टाइम से रिन्यू नहीं किया, तो वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है कि कानून में तो ये लिखा है कि 90 डेज में रिन्यूअल हम कर देंगे, पर प्रैक्टिकली होता नहीं है। प्रोसेस बहुत ओनरस है, तो प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। तो इसमें क्या है कि जिस दिन आपका FCI एक्सपायर हो जाएगा NGO का, उस दिन के बाद वो कोई भी FC एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और अभी इसमें एक और रूल 5 आया है, रूल 12(5), जिसको पढ़ने से ये लगता है कि ज़्यादातर बैंक्स उसको इंटरप्रेट करेंगे
कि भाई जो ऑलरेडी इनके पास एफसी है वो भी हम इनको यूज नहीं करने देंगे। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पहले भी आ रही थी, इस बार भी आएंगी। इसलिए सभी एनजीओज को आपको इनकरेज करना चाहिए कि एज अर्ली एज पॉसिबल वॉर फुटिंग पे इसके लिए अप्लाई कर दें। जो नया FCRA 29 सितंबर 20 को इन्होंने चेंज किया था गवर्नमेंट ने, उसमें एक बहुत मेजर चेंज आया था, वो था सब ग्रांट्स का। तो अभी सब ग्रांटिंग और सेकेंडरी ट्रांसफर एफसी का कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है। किसी भी तरह से, चाहे मटेरियल हो, चाहे कोई लोन हो, या कोई किसी तरह से डिस्गाइज करके कोई पेमेंट करना चाहे, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट का रवैया बहुत ही सख्त है इसमें। अभी डिपार्टमेंट ने CAG के ऑडिटर्स, रिटायर्ड ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं। वो लोग सब एनजीओज को विजिट कर करके, बड़ी एनजीओज को फर्स्ट फेज में विजिट करके उनका ऑडिट कर रहे हैं। बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। हम लोग जिस तरह का ऑडिट करते हैं उससे कहीं इनका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटेंस ऑडिट है। तो ये सभी को ये ध्यान रखना है कि FCRA में किसी भी तरह का लैप्स इनको नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली सब ग्रांट्स या ट्रांसफर्स। 29 सितंबर 20 से ये ब्लॉक हो गया है। बहुत सारे लोग फर्टाइल माइंड से बहुत सारे लोग आइडिया सोचते हैं एनजीओ वाले कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, हम स्टाफ को अपने पेरोल पे अपॉइंट कर लेंगे। ये सारे रिस्की आइडियाज हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो ये सारी चीज़ों का उनको एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। तो आप अपने क्लाइंट्स को यही गाइड करें कि प्लीज़ इस तरह का कोई भी रिस्क ना लें। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है। ये डायरेक्टली इसकी इंक्वायरी IB और CBI करते हैं, और बहुत ही इंटेंस और बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक जो मेजर चेंज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का प्रोविजन जो है सबसे पहले 2011 में लाया गया था, इसके ऊपर कैप लगाया गया था, और इनिशियली पहले 30% बिल में था, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 50% कर दिया था, और अब सितंबर 20 में इसको घटा के फिर से 20% कर दिया गया है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या है, ये रूल 5 में बताया गया है, और रूल 5 में जो बताया गया है वो काफ़ी कंफ्यूजन रहता है इस रूल के ऊपर। तो अभी 20% हो गया है, इसका काफ़ी हम लोगों ने एनालिसिस किया, समझने की कोशिश करी, तो हमें ये समझ में आया कि एक्चुअली ये डिपेंड करता है किस टाइप की एनजीओ है। अगर वो एनजीओ ट्रेनिंग एनजीओ है या रिसर्च एनजीओ है तो उसको कुछ एग्जेम्पशन है, जैसे स्टाफ जो ट्रेनिंग में एम्प्लॉयड है या रिसर्च में एम्प्लॉयड है, उनको उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में नहीं लेते हैं। अदरवाइज सारा स्टाफ जो है उसका सैलरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में इंक्लूड हो जाता है। और एक स्पेशल कैटेगरी और है, वो वेलफेयर ओरिएंटेड एनजीओज की है। डेवलप एड ने एक कंप्लायंस मैटर्स करके एक इसके ऊपर नोट इशू किया था, उसमें बड़े अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि वेलफेयर ओरिएंटेड एनजीओ किसे कहते हैं। जो एनजीओ राइट्स बेस्ड अप्रोच फॉलो कर रही है, या किसी प्रकार का एजुटेशन या उसकी डिमांड्स हैं, हक का डिमांड कर रही है, वो राइट्स बेस्ड कैटेगरी में आ जाती है। और जो एनजीओ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लोगों को डायरेक्टली हेल्प कर रही है, राशन और रिलीफ प्रोवाइड कर रही है, वो वेलफेयर ओरिएंटेड एनजीओ कहलाती हैं। तो वेलफेयर ओरिएंटेड एनजीओज के लिए ज़्यादातर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग स्टाफ सैलरीज वो एग्जेम्प्ट है, पर और एनजीओज के लिए बिल्कुल एग्जेम्प्ट नहीं है। रिसर्च और ट्रेनिंग एनजीओज के लिए थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पशन, जैसे मैंने बताया। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा एक वर्कशीट बना के इसको करना चाहिए, क्योंकि इस पे आप लोग भी शायद चाहेंगे कि अपने ऑडिटेड अकाउंट्स में एक नोट इसका दे दें कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो ये एक प्रोसेस है यहाँ पे कि एनजीओ सारी जितनी अपनी एक्सपेंसेस हैं FCRA फंड्स की वो लिस्ट करे, और उसमें से जो जो एडमिन की एक्सपेंस बनती है वो सेकंड कॉलम में लिस्ट करे। और ये करने के बाद वो देखे कि एनजीओ की कैटेगरी क्या है। अगर एनजीओ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो जितना ट्रेनिंग स्टाफ की सैलरी है वो हम थर्ड कॉलम में मूव कर देंगे, फोर्थ कॉलम में। और अगर एनजीओ जो है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो वो रिसर्च स्टाफ की भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि बड़ा ही शुभ काम है कि वो एनजीओ वेलफेयर ओरिएंटेड में आ जाती है, तो फिर ज़्यादातर सैलरीज जो हैं और काफ़ी सारी एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी एडमिन एक्सपेंस के एम्बिट से बाहर आ जाती हैं। जैसा इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट वर्कशीट में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट में
75,60,000 इसका हाइपोथेटिकल केस है, 75.6 लाख इसका 75% एडमिन एक्सपेंस आ रहा था। और ये हमने जो एक्सेप्शंस अप्लाई किए तो वेलफेयर ओरिएंटेड एक्सेप्शन अप्लाई करने से ही 19 लाख 19.6% रह गया। बहुत सी बार इस पे एनजीओ ना ध्यान देती है, ऑडिटर्स भी ध्यान नहीं देते, और एनजीओ जो है 100% तक रिपोर्ट कर देती हैं। हम लोगों ने पिछले साल एक एनालिसिस किया था, बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ ने 100% एडमिन में रिपोर्ट किया था, लैप्स हुआ या जो भी हुआ। कुछ एनजीओ ऐसी होती हैं कि 0% या 2% रिपोर्ट करती हैं। तो ये हमें थोड़ा इनको गाइड करना चाहिए कि ये लोग इस तरह की गलती ना करें। ओवर स्पेंडिंग के लिए या तो आप परमिशन ले सकते हैं, किसी वजह से मैनेज नहीं हो रहा है तो ओवर परमिशन के लिए एनजीओ एडवांस में परमिशन ले सकती है, या फिर कंपाउंडिंग फी पे कर सकती है। तो कंपाउंडिंग फीस ओवर स्पेंडिंग का 5% या 1 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर। इसके साथ 3,000 रुपीज एक एप्लीकेशन फी इन एनी केस लगती है, वो एक्स्ट्रा देनी होगी। पर कैप, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये केवल once in 3 years आप कंपाउंडिंग करवा सकते हैं। आप यू कांट मेक अ हैबिट ऑफ इट कि आप हर साल आपने जाके किया, कोई बात नहीं 5% दो देना है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सो अगला जो इसमें इशू है एफसीआरए की खास बात है वो है सेपरेट बुक्स की, सेपरेट रिकॉर्ड्स की। तो सबसे पहले इसमें एफसीआरए का रिक्वायरमेंट है कि उसका अकाउंट बुक्स जो है वो एक सेपरेट सेट होना चाहिए। और अगर एनजीओ जो है प्रोजेक्ट वाइज रख रही है या कॉमन बुक्स रख रही है एफसी और नॉन एफसी के लिए, तो इस पे रिक्वायर्ड है कि हम लोग क्वालिफाई करें ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि इस पे पेनल्टी भी काफ़ी है और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये हम लोग सिस्टम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप टैली यूज़ करते हैं, आपका एनजीओ क्लाइंट जो है टैली यूज़ कर रहा है, तो वो एक ग्रुप कंपनी बना ले, उसके अंदर 3 कंपनीज बना ले, एफसीआरए, नॉन एफसीआरए और फी बेस्ड। जैसे आप जानते हैं कि सेक्शन 11 में एक अगर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी एनजीओ कर रही है तो उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए होता है, सेपरेट P&L बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि वो थर्ड कंपनी बना ले ऐसे केस में। और फिर हर एक कंपनी के अंदर या तो ग्रुप अकाउंट्स बनाए या कॉस्ट सेंटर्स बनाए, जिसके थ्रू वो ये रिक्वायरमेंट जो है ये फुलफिल हो जाता है। सेकंड बात है सेपरेट रिकॉर्ड्स की। तो एफसीआरए में सभी रिकॉर्ड सेपरेट होने चाहिए, सैलरी रजिस्टर भी सेपरेट होना चाहिए, एफसीआरए एम्प्लॉइज का फिक्स सैलरी रजिस्टर भी होना चाहिए सेपरेट, और यहाँ तक कि फिक्स रजिस्टर के साथ एक खास बात है, इस पर एफसीआई डिपार्टमेंट काफ़ी ध्यान दे रहा है। इसमें ये खास बात है कि ये मैनुअली मेंटेन होना चाहिए। अगर और साथ में एफसीआई डिपार्टमेंट ऑडिट के दौरान ये भी देखते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन शीट्स हैं कि नहीं, फिजिकली वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं, फिक्स एसेट्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर ये भी सेपरेट चाहिए। एफसीआई से कोई आपने एफडी करी हुई है या इन्वेस्टमेंट करा हुआ है उसके लिए एक रजिस्टर होना चाहिए। और ये रजिस्टर्स का बहुत से लोग ऐसा करते हैं एक्सेल में बना लेते हैं। तो एक्सेल का रिकॉर्ड जो है एज एन ऑडिटर वी डू नॉट एक्सेप्ट कि एक्सेल इज अ वैलिड रिकॉर्ड, इट्स ओनली अ स्प्रेडशीट। तो या तो मैनुअली बने या टैली में, जैसे कि अगर टैली मेंटेन कर रहे हैं, टैली के अंदर एक रूटीन आता है सेपरेटली टैली मार्केट प्लेस में, जिससे फिक्स रजिस्टर जनरेट हो जाता है। तो कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू या ऐसे करें, बट एक्सेल का स्प्रेडशीट बनाना किसी रिकॉर्ड के लिए कोई वाजिब बात नहीं। स्टॉक रजिस्टर सेपरेट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड्स पे एफसीआई डिपार्टमेंट का काफी जोर है, तो ये जरूर एनजीओ को मेंटेन करना चाहिए। जो एक बहुत नया सेंटर पीस आ गया है एफसीआई डिपार्टमेंट का, वो है एसबीआई एनडीएमए अकाउंट। एफसीआई डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा मुहिम चला रहा है। सभी एनजीओज के लिए डायरेक्शन है कि उन्हें एसबीआई न्यू दिल्ली मेन ब्रांच पार्लियामेंट स्ट्रीट जंतर मंतर के सामने बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। ये बैंक अकाउंट रिमोटली खुल रहा है, पर इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। इसका अभी 30 जून तक एक्सटेंशन किया था, शायद दोबारा एक्सटेंशन देंगे, क्योंकि अभी भी 8-10 हज़ार एनजीओज के अकाउंट नहीं खुले हैं।
और ये अकाउंट खुलने के बाद ये डिजिग्नेटेड अकाउंट हो जाएगा, तो सारा पैसा जो है सबसे पहले इस बैंक अकाउंट में आना है, SBI NDMB अकाउंट में आना है। और ये यहाँ पे आप पैसा रिसीव कर सकते हैं, रख सकते हैं, पर यहाँ से यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं एक्सपेक्टेड है कि आप यहाँ से यूटिलाइज करेंगे। तो जो आपका एनजीओ का पुराना जो अकाउंट था, जो डेजिग्नेटेड अकाउंट था, उसमें ऑप्शन है फॉर्म 6C फाइल करते वक्त आप उसको अनदर FCRA अकाउंट का दर्जा दे दें, तो वहां से पैसा SBI NDMB अकाउंट से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। SBI NDMB में ये लोग इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, और अगर आपको किसी वजह से नहीं मिलती है तो फिर आपको लोकल ब्रांच में एनजीओ को वहां जाके उसको ऑपरेट करना पड़ता है एनी ब्रांच बैंकिंग के थ्रू। अदर ब्रांच FCRA अकाउंट से पैसा खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यूटिलाइजेशन अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म 6D फाइल करना होता है। तो काफ़ी इंट्रिकेट मैकेनिज्म है, और इस पे FCRA डिपार्टमेंट का काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रोल हो गया है इसके थ्रू, क्योंकि अभी जो रेमिटेंसेस आती हैं उसको FCRA डिपार्टमेंट वहीं उनका स्टाफ जो है शायद SBI NDMB में बैठ के उनको देख सकते हैं कि कौन सी हमें रेमिटेंस अलाउ करनी है, कौन सी नहीं अलाउ करनी है। रिटर्न्स जो हैं वो दो तरह के मेन रिटर्न्स हैं। एक तो FC1 है, तो ये बहुत से लोग भूल जाते हैं। अगर किसी भी एनजीओ को कंट्रीब्यूशन काइंड मिलता है, जिसका मतलब कि मटेरियल हो या सिक्योरिटीज हो, तो उसके लिए FC1 पार्ट B फाइल करना होता है, और इसकी 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है। साथ में FC4 वो मटेरियल जो है, मनी और मटेरियल दोनों चीज़ों को FC4 में भी रिफ्लेक्ट करना होता है, जिसकी अगेन डेट 31 दिसंबर होती है। इसकी डेट 1920 की डेट बढ़ा के 30 जून कर दी थी, जो कि एक्सपायर हो गई है, और फिर भी करीब 8,000 एनजीओस फाइल नहीं कर पाई हैं। तो अभी मंडे को मेरे ख्याल से शायद 1 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में रिलीफ दी है कि डिपार्टमेंट कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेगा। डिपार्टमेंट के जो लॉ एडवोकेट थे वो कह रहे थे कि भाई पेनल्टी देके इसको फाइल कर दीजिए, तो हाई कोर्ट ने कहा ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है और आप इसको रिव्यू करिए और अपना रिप्लाई दीजिए। तो इट इज़ पॉसिबल कि एक्सटेंड हो जाए, पर FCRA डिपार्टमेंट का ऐसा कुछ अभी तक कोई एक्सटेंड किया नहीं है। इसके अलावा कोविड के काम करने के लिए एक अलग से स्पेशल डायरेक्टिव देके कोविड-19 की एक रिपोर्ट पिछले साल इंट्रोड्यूस की गई थी। ये अभी उसका वेग स्टेटस है, कुछ लोग फाइल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं फाइल कर रहे हैं। FC4 को भरने में और फाइल करने में ये बहुत बहुत क्रिटिकल रिपोर्ट है FCRA डिपार्टमेंट की। इसमें पब्लिकली अवेलेबल भी है, सब लोग इसको चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट में ज़्यादा खर्च हो गया दूसरे प्रोजेक्ट से पैसा लेके, लेकिन FC4 में आप नेगेटिव बैलेंसेस नहीं डाल सकते। ये एक सॉफ्टवेयर का उसमें रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए ये इंश्योर करना चाहिए इंटरफंड ट्रांसफर ना किया जाए। और चाहे FC में ही, FC और नॉन FC में तो इंटरफंड ट्रांसफर करना बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। उसको अगर उसका निदान बहुत ही मुश्किल है। और अगर आप इंटर प्रोजेक्ट ट्रांसफर करते हैं, इंटरफंड ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें ये नेगेटिव बैलेंस का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो इसका एक फिक्स है, वो ये कि इंटर प्रोजेक्ट ट्रांसफर करके उसको विद इन FC उसको आप वहाँ पे FC4 में मर्ज करके प्रोजेक्ट्स को आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पर इसके अलावा अब जो नया FC4 फाइल करना है, जिन लोगों ने कर दिया, जिन्होंने नहीं किया, उनको ये SBI NDMB अकाउंट का रिक्वायरमेंट उसमें डालना है। वो उस डिटेल के बिना FC4 फॉर्म फाइल नहीं हो रहा है, और ये जब तक खुल नहीं जाता है अकाउंट और आप इसका FC6B फाइल करके इसको अपडेट 6C फाइल करके अपडेट नहीं कर लेते, तब तक इसको यहाँ भरना मुश्किल है। FC6C में मैं बता दूं कि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग NGO जो फॉर्म भर रहे हैं वो उसमें काफ़ी गलत भर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पुराना अकाउंट है वो वैसे के वैसे ही रहता है, और नया जो SBI NDMB अकाउंट बना वो अनदर FCRA अकाउंट बन जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को मेरा तजुर्बा ये है पिछले 25-30 साल का एनजीओ के साथ काम करने में, कि कोई भी काम सिंपल नहीं होता। सिंपल काम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स काम तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप लोगों का ही सहारा एनजीओ के पास रहता है, तो आप इसमें उनकी हेल्प कर सकेंगे, ऐसा उम्मीद है। तो
एक इसमें नया क्वेश्चनियर डाला गया है, करीब 14-15 क्वेश्चंस हैं इसमें, और 1920 में भी ये क्वेश्चन है कि क्या आपने किसी और एनजीओ को ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे आपको यस कह के और फिर उसका रीज़न देना होता है कि भाई ये अलाउड था, और डिटेल हमने आगे दी हुई है। सिमिलरली इसमें पूछा है कि आपने कितना 20% ज़्यादा खर्च किया है क्या, तो आपको यस कह के फिर कहना होगा कि ये लिमिट अलाउड थी। यहाँ पे मैं ये भी बोल दूं कि ये जो 20% की लिमिट है ये 1920 तक तो 50% थी, बट 2021 से ये 20% हो गई है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आधे साल के लिए 50% रहेगी, आधे साल के लिए 20% रहेगी। तो हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह का हम बंदरबांट नहीं कर पाएंगे और पूरे साल के लिए ही एप्लीकेबल होगी वो लिमिट। ये अलग बात है कि वो मिड टर्म में अप्लाई की गई है, पर एफसीआई डिपार्टमेंट से इसमें बहुत ज़्यादा बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, और इसलिए 20% पे ही लेके आप लोग चलें तो अच्छा रहेगा। FC4 रिवाइज करने का कोई प्रोविजन नहीं है, और इसकी वजह से ये हमें ध्यान रखना है कि FC4 बिल्कुल ठीक ठीक फाइल किया जाए। ऐसा नहीं इनकम टैक्स में जैसे हमारे पास रिवीजन का ऑप्शन है, FC4 में रिवीजन का कोई ऑप्शन नहीं है। किसी वजह से अगर ऐसा कोई बहुत मेजर एरर हो जाता है जो आपको रिवाइज करना ही करना है, तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा दरवाज़ा है, चुपचाप, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। उसके लिए आपको एक एफसीआई डिपार्टमेंट को एक ईमेल लिखनी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो कभी कभी वो बहुत अगर उन्हें ठीक लगता है तो वो फिर ऐसे में केस में आपको ऑनलाइन अलाउ कर देते हैं उसको अमेंड करने का FC4 रिटर्न को। तो फिर उसके बाद वो विंडो खुलेगी आपके लिए, आप उसको रिवाइज करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो ब्रॉडली FC के बारे में था जो एनजीओज के पर्सपेक्टिव से। अब मैं थोड़ा सा अपने ऑडिट के ऊपर आना चाहता हूँ जो हमारा मेन फोकस है। देखिए FCRA ऑडिट जो है उसको बहुत एकदम से सडनली गवर्नमेंट ने अपग्रेड कर दिया है और वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले ये आपको सबको मालूम ही होगा कि FCRA के लिए अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए। उसमें केवल FCRA के फंड्स रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। उसमें 3 तरह के बनेंगे, बैलेंस शीट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड फाइनेंशियल अकाउंट। और मैंने आई एम नॉट श्योर अगर मैंने बताया है कि नहीं, लेकिन ये उन एनजीओ की वेबसाइट पे भी इसको अपलोड करना चाहिए। ये भी एक रिक्वायरमेंट है रूल्स में। अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि ये किस तरह का इसका फॉर्मेट हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पर मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहूँ, जो FC4 है वो हमेशा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बेसिस पे भरा जाता है। उसको कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे नहीं भरना चाहिए, बिकॉज FCRA का पूरा रिपोर्टिंग जो है वो कैश बेसिस पे है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैसी फॉर्मेट हो, बहुत सालों से हम लोगों ने ट्राई करके ये एक फॉर्मेट डेवलप किया है। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अलग अलग बैलेंस शीट बनाने के लिए कंसोलिडेटेड और FCRA की अलग बैलेंस शीट बनाने के बजाय एक तो उसमें काम बढ़ जाता है और दूसरा उसमें एरर का चांस भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं जो कि बाद में FCRA का CAG ऑडिट होता है उसमें वो सरफेस करती हैं और बिकम्स इम्पॉसिबल टू करेक्ट देम। तो इसके लिए हम लोग ये रेकमेंड करते हैं नॉर्मली कि आप इस तरह की कॉलमनार बैलेंस शीट अपने क्लाइंट को बोलें, एनकरेज करें बनाने के लिए, जिसमें FC फंड्स और नॉन FC फंड्स दोनों अलग अलग कॉलम में दिखाएं और टोटल दिखा दें। तो ऐसे करने से अगर आपका कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई आपका कॉन्ट्रडिक्शन बन रहा है, तो वो आसानी से पकड़ जाता है। तो ये हो गया। फिर इसमें देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस तरह का हमें प्रेजेंटेशन लेना चाहिए कि प्रोग्राम एक्सपेंसेस जो हैं मोटा मोटा हम लोग बताएं कि क्या क्या प्रोग्राम्स में है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को भी एक लाइन से बताएं। इसके लिए बाद में एक नोट हम लोग डाल सकते हैं अकाउंट नोट्स टू अकाउंट्स में, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का ब्रेकडाउन रूल 5 के हिसाब से दिया जाएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी हमें बताना है, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसा देखता हूँ मैं, एनजीओ ऐसा करते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब ठीक प्रोसेस नहीं है। इससे रिपोर्टिंग में और प्रेजेंटेशन में एरर्स होते हैं।
तो ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा मैकेनिज्म एनजीओ डेवलप करे कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक बैंक बुक के बेसिस पे निकाले और जर्नल एंट्रीज इसमें रिफ्लेक्ट ना करें, क्योंकि एफसीआरए की रिपोर्टिंग जो है वो रिसीट्स पेमेंट पे ही है, कैश बेसिस पे ही है। अब जो ये लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एफसीआरए डिपार्टमेंट में एक चार्टर्स इशू किए हैं, और उसमें एक चार्टर हम लोगों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी है। ये चार्टर बहुत ही सीरियस और ख़तरनाक है, और मैं बड़ा आपका इंदौर ब्रांच का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका हमें मिला इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताता हूँ ये चार्टर किस तरह का है। इसमें चार्टर जो अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, इसका कोई ये साइंड चार्टर नहीं है, बट एक तरह का एक डायरेक्टिव है, और उसमें ब्रॉडली उन्होंने लिखा गया है कि ये सीए की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और वहाँ ऑडिट के बारे में उन्होंने ये लिख दिया है। अब आप गौर से देखिए, देयरफॉर दे आर ओब्लाइज टू कंडक्ट परफॉर्मेंस एज वेल एज फॉरेंसिक ऑडिट। तो कहने का मतलब ये है, एफसीआई डिपार्टमेंट का ऐसा मानना है कि हम लोग क्योंकि सीए सर्टिफिकेट देते हैं, उसके तहत हमको परफॉर्मेंस और फॉरेंसिक ऑडिट भी करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, फॉरेंसिक ऑडिटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन, वो मैंने किया। उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये फॉरेंसिक ऑडिट तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो हम लोग करते हैं फॉरेंसिक ऑडिट्स, और इसमें बहुत स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं, स्पेशल स्टाफ चाहिए होता है, और काफ़ी टाइम भी लगता है, और एनजीओ के लिए भी बहुत पेनफुल है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। जो ऑडिट आप नॉर्मली किसी एनजीओ का मान लीजिए 50,000 में कर रहे हैं, तो फॉरेंसिक ऑडिट अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए लगेगा, क्योंकि साथ ही में इन्होंने परफॉर्मेंस ऑडिट भी लिख दिया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया है कि किस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस और फॉरेंसिक ऑडिट का रिक्वायरमेंट इसमें डाला है, जो ऑडिट सर्टिफिकेट के एक फॉर्मेट में कहीं भी इसका रेफरेंस नहीं है, कोई उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है रूल्स में या एक्ट इटसेल्फ में कि ये परफॉर्मेंस और फॉरेंसिक ऑडिट हम लोगों को करना है। तो ये थोड़ा मेरा निवेदन होगा, इंदौर ब्रांच से भी होगा निवेदन कि इसके ऊपर आप लोग थोड़ा विचार करें। और सिंस ये एक इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि ये आगे हमें चल के हमारे लिए परेशानी बन जाए, इस चीज़ पे क्लैरिटी इंस्टीट्यूट को लेनी चाहिए। क्योंकि परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब ये होता है कि फील्ड विजिट उसमें होती है, और वो देखा जाता है कि किस तरह का काम उन्होंने किया है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड प्रोसेस है। एनजीओ का फील्ड बहुत विस्तृत होता है, उसमें एक सीए सर्टिफिकेट जिसके लिए अमूमन एनजीओ जो है वो 10,000 से 50,000 फीस देने में भी कतराती हैं। बड़ी बड़ी फाउंडेशंस जो हैं वो उसको एक न्यूसेंस मानती हैं। वहाँ पे इस तरह का ऑडिट करना जो है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकेंडली, उसमें ये बताया एफसीआई डिपार्टमेंट में क्या क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो ये इसमें ये तो दिस कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल होना ही चाहिए। फाइनली इन्होंने इसमें जो एक और सजेशन दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि सीएस को हम लोगों का ये रिक्वायरमेंट है कि हम उनको प्रॉपर प्रिपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट में असिस्ट करें। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आया। मैं जब सीए करा था तब मुझे ऐसा बताया गया था इंस्टीट्यूट ने कि भाई आप जो अगर ऑडिट कर रहे हैं तो फिर आप अकाउंट बुक्स नहीं मेंटेन कर सकते। तो लेकिन ये यहाँ पे एफसीआई डिपार्टमेंट ने इसमें थोड़ा सा गूगली कर दिया है कि हमें ऑडिट भी करना है और हमें अकाउंट बुक्स भी मेंटेन करनी है। तो अगर हम एफसीआई डिपार्टमेंट की बात मानते हैं तो इंस्टीट्यूट हमारे पीछे आएगी, और अगर हम इंस्टीट्यूट की बात मानते हैं तो एफसीआई डिपार्टमेंट कहेगा कि आपने ठीक से काम नहीं किया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट को आपस में मिलकर सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये चार्टर फॉर चार्टर्ड अकाउंट 6 महीने से एफसीआई की वेबसाइट पे है, और धीमे धीमे ये एक परमानेंट फीचर हो जाएगा। इसके ऊपर क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद जो FC4 सर्टिफिकेट है, जो रूल्स में जो फॉर्मेट दिया है, उसमें 2 शॉर्टकमिंग्स हैं। मैंने इसको यहाँ येलो में हाईलाइट किया है। तो रूल 17 जो है इसका,
वो है रिटर्न्स के बारे में, पर यहाँ पे ये लिखा गया है कि अकाउंट बुक्स जो हैं रूल 17 के हिसाब से मेंटेन्ड है कि नहीं, सेक्शन 19 और रूल 17 के हिसाब से। तो एक्चुअली वो रूल 11 में अकाउंट बुक्स के मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है। 6 पॉइंट में कहा गया है कि इंफॉर्मेशन इनक्लोज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट रिसीट्स एंड पेमेंट इज करेक्ट। यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर का रेफरेंस नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा, हम जहाँ पे एक आध जगह हम लोग किसी के लिए ये करते हैं FCRA ऑडिट, वहाँ पे हम लोग ये फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप देखिए येलो में हाईलाइट किया हुआ है। एक तो हमें रिक्वायरमेंट है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैश और इन काइंड दोनों ही हमें रिपोर्ट करना है सर्टिफिकेट में। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने ये लाइन ऐड करी हुई है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन काइंड का क्या स्टेटस है। सेकेंडली, आगे चल के हमने रूल 11 और 17 ये दोनों का रेफरेंस ऐड किया है। और फाइनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी रेफरेंस इसमें हमने ऐड कर दिया है। इसके अलावा हालांकि CA सर्टिफिकेट की फॉर्मेट में ये नहीं है, पर बिकॉज ये देखिए ऑडिट और सर्टिफिकेट के बीच का कहीं एक चीज़ बन गई है, तो इसलिए हम लोग इसमें ये रिकमेंड करते हैं कि आप CA सर्टिफिकेट इशू करते वक्त इसमें ये दो पैराग्राफ आप और ऐड कर दें, तो जिससे कि आपका स्कोप ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियर रहे। इसके अलावा आपको कहीं भी इस तरह का लगता है कि NGO में, देखिए परफॉर्मेंस ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट तो अपनी जगह एक अलग इशू है, वो डिस्प्यूटेड है और वो इंस्टीट्यूट उसके बारे में क्लैरिफाई कर सकेगा, आप लोग सब इसके बारे में अपनी क्लैरिटी कर पाएंगे। उसको इग्नोर करते हुए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कि NGO में हम जो इसको चेक अकाउंट्स ऑडिट कर रहे हैं वहाँ पे कोई वायलेशंस हैं या शॉर्टकमिंग्स हैं या लैप्सेस हैं, तो उसके लिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आप लोग अपने CA सर्टिफिकेट में डाल सकते हैं अगर आप ठीक समझें। और कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स आपको दिखाए हुए हैं, इस तरह के एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ हम लोग डाल सकते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट होगी और लाइबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। जहाँ पे आपको दिखाई देता है कि उन्होंने कोई वायलेशन किया है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट की फॉर्मेट है वो बहुत ही ब्लैंड है और उसमें बहुत सारे ऐसे वायलेशन जो आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसके अलावा जहाँ आपको लगे कि क्वालिफाई करना है तो क्वालिफिकेशंस के यहाँ जस्ट सैम्पल्स की तरह से हम लोगों ने दिए हुए हैं कि अगर वो सेपरेट बुक्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं अकाउंट्स को। अगर उन्होंने रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं या डोनर नेशनैलिटी डिटेल नहीं उन्होंने मेंटेन कर रहे हैं, आपको क्लियर नहीं हो रहा कि फॉरेन डोनेशन है कि नहीं, तो इस तरह के आप डाल सकते हैं। और इस वेरियस टाइप की क्वालिफिकेशंस जो हम लोगों को दिखाई देती हैं प्रॉब्लम्स, उस तरह की हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। साथ ही साथ हम लोग ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अगर NGO के ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक थोड़ा सा ऑडिटर्स के सस्पेंड का डॉक्यूमेंटेशन अपने लिए करें। आगे चल के इसमें CAs ऑडिट में और सख्ती होने वाली है, ऑलरेडी ये चार्टर फॉर चार्टर्ड अकाउंट्स दिखाई दे रहा है। पहले भी हम लोग जानते हैं कि CAs की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसके लिए ये प्रोसेस हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट करें कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री है, फंडिंग है, प्रोग्राम एक्ट किस तरह के उसमें रिस्क हैं, कितनी उसको FCRA की नॉलेज है, क्या प्रेशर वो फेस कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि कहाँ पे आपको ज़्यादा ऑडिट टेस्ट की ज़रूरत है, क्या आपका रिक्वायरमेंट है। हमारा ये सजेशन है कि FCRA में अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको इसको ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी FCRA के केसेस जो हैं वो स्क्रूटनी में आएंगे या डिपार्टमेंट के ऑडिट में आएंगे या कभी कोई कंट्रोवर्सी होगी, तो हमेशा आजकल देखा गया है कि CA जो हैं वो सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं कि आपने कैसे ऑडिट सर्टिफिकेट इशू किया, विदाउट क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भाई सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा ये रिक्वायरमेंट्स सजेशंस हैं
कि एक अपॉइंटमेंट लेटर या एंगेजमेंट लेटर, स्कोप ऑफ वर्क रखें। अपने ईमेल्स और वर्किंग नोट्स, आजकल जब से हमारा ये हम लोग कंप्यूटर यूज़ करने लगे हैं तब से मैंने खुद भी महसूस किया है कि हमारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्यूटर पे ही रहता है। कभी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, ईमेल्स हैं, ईमेल स्टाफ के इनबॉक्सेस में रहती हैं, उनको सेंट्रलाइज नहीं कर पाते, उनको प्रिंट करके या जनरेट करके हम डायरेक्टरी नहीं मेंटेन कर पाते। ये एक वीकनेस है। कभी इन्वेस्टिगेशन हो या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो तो उसमें हम लोग इसमें परेशान होते हैं। डिस्प्यूटेड इश्यूज जो हैं उसके ऊपर आपका एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या कॉरस्पॉन्डेंस वो हो। और किसी स्टेज पे बहुत सी बार देखा गया कि एनजीओ जो है, अगर कोई इशू होता है, हम लोग डोनर एजेंसीज के बिहाफ पे ऑडिट करने जाते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि एनजीओ जो है सिंपली कहते हैं साहब ऑडिटर ने ऐसा बोला था। तो इसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि एक टेंडेंसी होती है कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ऑडिटर के ऊपर डाल देने की। कभी सच भी होता है और कभी ये केवल एक कन्वीनियंट स्केप कोड की तरह से होते हैं। तो हम लोगों की किसी भी चीज़ में कंप्लिसिटी नहीं आनी चाहिए। We should offer clear advice and we should ensure that that advice is documented, because NGOs में बहुत सारी weaknesses होती हैं, vulnerability होती हैं, and they are not as strong as we are. Therefore we should also ensure कि ये risk को हम cover कर पाएं। इसलिए लेटर रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेना ज़रूरी है। और साथ ही में हम लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप मैनेजमेंट लेटर ज़रूर इशू करें FCRA ऑडिट के लिए। किस तरह के मैनेजमेंट लेटर इशू करते हैं, किस तरह के इश्यूज आते हैं, वो मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल आपको दिखाए हैं जस्ट एज अ स्टार्टर किट कि इस तरह के इश्यूज आपके ट्रेनीज और आपके जो ऑडिट स्टाफ है वो देख के मैनेजमेंट लेटर में किस तरह डाल सकते हैं और उनसे उनकी रिस्पांस लें एनजीओ की, और इसको रिकॉर्ड पे लिया है कि आपने ये गाइडेंस दी थी। उसके बाद अगर कंटिन्यूसली क्लाइंट नहीं कर रहा है तो यू हैव योर ऑप्शंस ओपन कि हमें इनके साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। तो ये ब्रॉडली जो है ऑडिट का कुछ स्लाइड्स मैंने आपसे शेयर करी। एक इसमें रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत इग्नोर किया जाता है कि पब्लिक डिस्क्लोजर का। एनजीओज के लिए 2 रिक्वायरमेंट है पब्लिक डिस्क्लोजर के। एक तो है कि क्वार्टरली रिसीट्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे या FCRA की वेबसाइट पे 15 दिन के अंदर उन्हें अपलोड करनी होती है। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे करें क्योंकि उसमें थोड़ा आप ठीक से कर पाते हैं, और कहीं कोई एरर हो जाता है तो उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। FCRA की साइट पे अपलोड करने के बाद उसको ठीक करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली एक ये रिक्वायरमेंट है कि आपको FCRA के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 31 दिसंबर तक आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। तो बहुत सी एनजीओ इसको नहीं कर रही हैं। मुझे लगता है कि करीब 70 to 90% एनजीओ इसको नहीं कर रही हैं। ये एक बहुत ही कमेंडेबल स्टेप है इसको अपलोड करना, क्योंकि जो पब्लिक के मन में तरह तरह की बातें बैठ गई हैं कि फॉरेन फंडेड एनजीओस मिसयूज करती हैं फंड्स को या बताना नहीं चाहती हैं, ये इसके लिए एक रामबाण औषध है। और पब्लिक डिस्क्लोजर हम सभी क्लाइंट्स को एनकरेज करते हैं कि सभी एनजीओस को जिनको हम ऑडिट करने जाते हैं उनको भी हम एनकरेज करते हैं कि वो आप इसको करवाएं। हमारे जो डोनर एजेंसीज से हम लोग हमारे क्लाइंट्स होते हैं मेनली, उनको हम ये भी मोटिवेट करते हैं कि वो अपने ग्रांट लेटर के अंदर ये कंडीशन डालें कि एनजीओ को अपने अकाउंट्स जो हैं पब्लिकली डिस्क्लोज करने चाहिए। तो फाइनली FCRA डिपार्टमेंट का एक इस साल नए अमेंडमेंट में जो 2020 में हुआ उसमें एक सर्किट क्लोज हो गया है कि किसी भी तरह से अगर आप FC रजिस्ट्रेशन आपका लॉस होता है, उसमें अगर सस्पेंशन हुआ और सस्पेंशन के बाद कैंसिलेशन हो गया तो आपका जो सारा FC और एसेट्स जो हैं गवर्नमेंट के पास जाते हैं। कैंसिलेशन होता है तो जाते ही हैं। इस बार अगर आप रिन्यूअल अप्लाई नहीं करते या आपका रिन्यूअल रिजेक्ट हो जाता है तो भी गवर्नमेंट के पास जाएंगे। और अगर आप सरेंडर करते हैं, एक नया प्रोविजन डाला है FC7 का कि आप अपना FCRA अकाउंट जो है सरेंडर अपना FCRA सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने में एक ब्रीफ इंक्वायरी करते हैं। अगर आपने कोई भी रेगुलरिटी नहीं की है तो आपका सरेंडर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सरेंडर एक्सेप्ट करने के साथ साथ आपके जितने भी FCRA के एसेट्स हैं और जितनी भी आपका फिक्स एसेट्स हों या बैंक बैलेंसेस हों, सभी जो है
गवर्नमेंट अपने मैनेजमेंट पे ले लेती है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने FCRA, आपके एनजीओ ने FCRA फंड से एक बिल्डिंग बनाई जिसमें कि लैंड जो थी वो इंडियन फंड से थी, तो जब गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करती है तो लैंड और बिल्डिंग दोनों ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले जाएंगे। तो इसलिए मिक्सिंग ऑफ FCRA फंड्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। और इनफैक्ट हमारा रिकमेंडेशन है नए चेंज के बाद कि FCRA फंड जहाँ तक हो उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए और उसको एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसेट्स में इन्वेस्ट करने से ये एक रेजिडुअल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये बहुत ही ब्रीफ प्रेजेंटेशन मैंने किया है FCRA की, जो मैं आज सुबह बुक मैंने कंप्लीट करी, वो उसमें करीब 300-350 पेज का मैटर हो गया, 150 पेज की अपेंडिक्स हो गई, तो बहुत ही मैं घबरा गया हूँ। पर इतना टाइम हमारे पास नहीं था कि मैं इसको बहुत डिटेल में डील कर पाता। पर ये आपको अगर इसमें और डिटेल चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट पे sanjayte.com पे, या ये जब रिलीज होगी तब आप इस बुक में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी आपको। सो थैंक यू वेरी मच। और कीर्ति जी, सर, कोई अगर और मेरे लायक सेवा हो तो बताएं।